learners, welcome to the English class. In our last video, we have learned how to transform the declarative sentences and sentences with modal from active to passive. Now in this video, we will be doing some other types of sentences, transforming them from active to passive. So first type of sentence which we are going to do is imperative sentences. These are the sentences which represent either the command, request, suggestion, order, warning, threat. Alright, so here you must be seeing that I have written some examples. We will be starting with the first one. First is the order. First sentence is showing the order. Open the window. It is an order, right? Next is don't pluck the mangoes. This is a prohibition. Help the poor. This is the advice. Suggestion, advice from one side. You should help the poor. Then kindly pose this letter. This is as the word kindly is that request it is. Take your seat, please. Please, what is that? So it is again request. Let them count the notes. This is asking for permission. Allow them to count the notes. Permission मांग रहा है. Let me help you. This is an offer. हम कहते हैं ना. Let me do this for you. ठीक है? So offer. Let us play together. This suggestion. Let us read together. Let us revise this lesson. Let us play. Then I will beat you. This is a threat. तो हम सीखेंगे इनको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है. First sentence, open the window. अब देखेंगे. I have done 3 lines over here. It means there are 3 possible answers to this. We will see what these answers are. Open the window. अब ये तीनों में मैंने 3 possible answers बताया आपको. ये here also 3. In all these 3, I have done 3 lines. Means in these first 3 sentences, there are 3 possible answers. So how to do that? Open the window. ये imperative sentences वो sentences होते हैं जिनके अंदर mostly subject होता है you and that you is hidden. Okay, it is implied, it is understood. वो express नहीं होता है, understood होता है. Sentence subject होता है लेकिन वो hidden होता है. इसलिए हम जब इसको agent बनाएंगे या object बनाएंगे तभी भी उसको hidden ही रखेंगे. Will not write that you by you करके नहीं लिखेंगे. Open the window. This is an order. अब इसको कैसे करते हैं? तो फर्स्ट पॉसिबल आंसर है लेट द विंडो. नाउ द वर्ब इज ऑलवेज इन द बेस फॉर्म. जैसे मॉडल्स में या सिंपल फ्यूचर टेंस में बेस फॉर्म में होता है वर्ब, मेन वर्ब, ऐसे इसमें भी बेस फॉर्म में होता है. तो ये आपका ओपन, दिस इज द वर्ब दैट इज इन द बेस फॉर्म. लेट द विंडो, तो बेस फॉर्म हम लिखेंगे इसके बदले बी की बेस फॉर्म और फिर इसको ले लेंगे थर्ड फॉर्म में, दैट इज ओपन. लेट द विंडो बी ओपन. ठीक है. अब इस तरह से इसको भी डोंट प्लग द मैंगोस, ये प्रोहिबिशन है, मना किया हुआ किसी काम के लिए. इसको भी हम लेट से लिख सकते हैं. लेट. अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मैंने आपको बताया यू है, तो यू हिडन है. अब इसका ऑब्जेक्ट है क्या? प्लग नहीं करना है, मैंगोस. तो मैंगोस को हम सब्जेक्ट बनाएंगे. लेट द मैंगोस, दिस इज गोइंग टू बी द सब्जेक्ट. पहले आपको वर्ब पहचानना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना है. ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो यू है. Here also this is the verb and this is the object जो फिर सब्जेक्ट बन जाएगा. Let the mangoes, अब ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा. Let the mangoes. As I told you, जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा इसमें बेस फॉर्म में होता है, इसलिए हम बी की बेस फॉर्म लिखेंगे. Let the mangoes, लेकिन यहाँ पे do not है. ठीक है, do not pluck the mangoes. तो let the mangoes not be plucked. Let the mangoes not be plucked. Okay, so it is like this. Not, और ये फिर आपका बी बेस फॉर्म में जाएगा plucked. Okay, let the mangoes not be plucked. Then help the poor. This is advice. Let से कैसे लिखेंगे इसको भी? Let, then this is the verb and this is the object. वो सब्जेक्ट बन जाएगा. Let the poor, फिर ये बेस फॉर्म में जाएगा, बी की बेस फॉर्म में, बी हेल्प्ड. लेट द पुअर बी हेल्प्ड. ठीक है, इस तरह से इनको हम लिखेंगे. नाउ व्हाट इज द सेकंड वे? अब जो ये ऑर्डर होते हैं या एडवाइस होते हैं या प्रोहिबिशन होते हैं, तो इनको हम एक और तरीके से लेट सेंटेंस से लिख सकते हैं. और उसके बाद एक और वे है शुड. वी कैन राइट देम यूजिंग शुड. नाउ हाउ टू राइट यूजिंग देम शुड? ओपन द विंडो, फिर ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा. द विंडो शुड. ठीक है, अब हमको पता है ये बेस
फॉर्म में है तो बेस फॉर्म बी की भी आएगी और फिर ओपन की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, द विंडो शुड बी ओपन। सेम वे दिस आल्सो, डोंट प्लग द मैंगोज, द मैंगोज ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएंगे, द मैंगोज शुड, बिकॉज दिस इज नेगेटिव नॉट आएगा, फिर बी, दिस विल गो इन द बी फॉर्म बेस फॉर्म और प्लग की थर्ड फॉर्म, द मैंगोज शुड नॉट बी प्लग्ड। हेल्प द पुअर, इसको हम कैसे करेंगे, लेट से तो हमने लिख दिया, अब शुड से हमको लिखना है तो द सब्जेक्ट, ये द पुअर सब्जेक्ट हो जाएगा इसका, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, शुड बी हेल्प्ड। ठीक है, शुड का यूज करके सिर्फ ऑर्डर और एडवाइस प्रोहिबिशन वाले सेंटेंसेस को लिखा जा सकता है। ठीक है, लेट से भी इन्हीं को लिखा जाएगा। देन थर्ड वे, यू आर, अभी हमको पता, सेंटेंस पढ़ के हमको पता चलना चाहिए कि इसमें ऑर्डर दिया हुआ है या प्रोहिबिशन दिया हुआ है, एडवाइस दिया हुआ है, क्या है। ठीक है, वी हैव टू रिकॉग्नाइज। फिर हम लिख सकते हैं इसको यू आर, अब हमको ये पढ़ के पता चल रहा है कि ऑर्डर है, यू आर ऑर्डर्ड टू के साथ में बेस फॉर्म होती है हमेशा, ये बेस फॉर्म आ जाएगी, टू ओपन द विंडो, ये थर्ड फॉर्म होगी, फिर यहाँ पे थर्ड फॉर्म होगी, ये इसकी थर्ड फॉर्म ही आएगी क्योंकि टू के साथ में इंफिनिटिव फॉर्म आती है, हमेशा बेस फॉर्म ही आती है। इसको तो हम टू ओपन ही लिख सकते हैं, तो इससे थर्ड फॉर्म में इसको ले लिया, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडो, दिस इज द थर्ड वे इन विच दिस कैन बी रिटन। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, यू डोंट प्लग द फ्लावर, यू आर फोरबेड। अब फोरबेड ये वर्ड ऐसा है जो ये बताता है कि काम नहीं करना है, मतलब इसी के अंदर नेगेटिव आ गया है। ठीक है, इसमें ही नेगेटिव आ गया है तो आपको फिर नॉट नहीं लगाना है। फोरबेड का मतलब होता है नहीं करना है, यू आर फोरबेड टू प्लक फ्लावर्स, मैंगोस, प्लक द मैंगोस। या आप इसको ऑर्डर से भी लिख सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, फिर आप लिखोगे नॉट टू प्लग द मैंगोज, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्लग द मैंगोज। ये थर्ड फॉर्म में लिखा है हमने, इसको थर्ड फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि टू के साथ में है, इसलिए ये यहाँ पे थर्ड फॉर्म में नहीं आएगा। इन दैट केस यू आर फोरबेड टू प्लग द मैंगोज। दीज आर द थ्री वेज। आप अब यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं हेल्प द, ये क्या है, एक एडवाइस है, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द poor, you are advised to help the poor। advice, prohibition और order को हम इन तीन तरीके से लिख सकते हैं, let से लिखेंगे, फिर उसके बाद should से लिखेंगे और फिर हम इसमें ordered, forbade या advised लगा के, अभी advised SED आएगी, verb form आएगी। okay, this is a noun। ठीक है, then next हमारा फोर्थ सेंटेंस है, kindly post this letter। ये एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट को हम लेट से नहीं लिख सकते हैं, शुड से भी नहीं लिख सकते, थर्ड तरीके से लिखेंगे इसको, यू आर रिक्वेस्टेड। अब इसमें काइंडली वर्ड रिपीट नहीं होगा, काइंडली प्लीज वर्ड ये पैसिव में रिपीट नहीं होते, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। ओके, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को लेट और शुड के मेथड से नहीं लिख सकते हैं, इसको सिर्फ ऐसे ही लिख सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि काइंडली और प्लीज देखा तो आपको समझ में आ गया कि ये रिक्वेस्ट है, तो आप इसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, टेक योर सीट प्लीज, अगेन प्लीज इज देयर, सो इट इज अ रिक्वेस्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। ऑलराइट, दिस इज द वे। Let them count the notes, ये परमिशन मांग रहे हैं। अब ये अलग टाइप का इंपरेटिव सेंटेंस है जिसमें परमिशन मांगी जा रही है, let them count the notes। ये ऑलरेडी let से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हमने इसको पैसिव बनाया तब ये let वाला सेंटेंस हो गया, लेकिन ये पहले से let में है। इन दैट केस ये सब्जेक्ट है और क्या काउंट करना है, नोट्स। let the notes be counted by them, ऐसे लिखेंगे इसको, let से ही लिखेंगे वापस इसको। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, लेट द
नोट्स बी, काउंट है बेस फॉर्म, जैसे लेट के साथ में बेस फॉर्म है तो ये बेस फॉर्म बी में जाएगी और काउंट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी काउंटेड. लेट द नोट्स बी काउंटेड बाय देम. ओके, लेट मी हेल्प यू, ये ऑफर, लेट मी हेल्प यू, ये भी लेट से ही लिखेंगे वापस. लेट, अब ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा लेट यू, फिर ये बेस फॉर्म बी में जाएगी बी, और इसको थर्ड फॉर्म में लिखेंगे हेल्प्ड बाय, लेट यू बी हेल्प्ड बाय, इसको फिर आई नहीं करेंगे, बाय है बाय. ओके, लेट यू बी हेल्प्ड बाय मी. लेट अस प्ले टुगेदर, ये सजेशन. अब इसको हम अलग तरीके से फिर लिखेंगे. इट इज सजेस्टेड, इट इज, इसको लेट से नहीं लिखा जाएगा, इट इज सजेस्टेड लिखेंगे क्योंकि ये सजेशन है. लेट अस वाले सेंटेंसेस सारे ऐसे ही लिखे जाते हैं. अगर लेट मी है, लेट देम है, लेट हर है, इन दैट केस आप इनको लेट से लिखेंगे. लेकिन अगर लेट अस है, लेट अस है मींस इट इज अ सजेशन, और उसको सजेस्ट ऐसे ही लिखा जाएगा. इट इज सजेस्टेड दैट, अब ये अस है ना, वो वी में हो जाएगा, चेंज हो जाएगा वी. ठीक है, शुड प्ले, शुड प्ले टुगेदर. दिस इज इन थर्ड फॉर्म. अब इसको थर्ड फॉर्म में लिखिए, जैसे यहाँ पे हमने ऑर्डर्ड को लिखा था थर्ड फॉर्म में, फिर यहाँ पे फॉरबिड को थर्ड फॉर्म में लिखा है, उसके बाद एडवाइस को थर्ड फॉर्म में लिखा है, रिक्वेस्टेड को थर्ड फॉर्म में लिखा है. ऐसे यहाँ पे भी सजेस्टेड को लिखा है क्योंकि हमारा जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में नहीं होगा. शूड के साथ में थर्ड फॉर्म नहीं आती है, टू इंफिनिटिव के साथ में थर्ड फॉर्म नहीं आती है. ठीक है, तो दीज आर द फॉर्मेट्स. इनको कैसे करना है, एक्टिव टू पैसिव, आप इनको प्रैक्टिस करें, रीड करें. नाउ दिस इज वन मोर टाइप ऑफ सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस. आई विल बीट यू, एक धमकी है, थ्रेट है. ठीक है, अब नॉर्मल फ्यूचर टेंस जब हम लिखते हैं तो आई के साथ में शैल आता है. हमने सिंपल फ्यूचर टेंस में सीखा था आई शैल, वी शैल, यू विल, ही शी इट विल, दे विल. तो फिर यहाँ आई के साथ में विल क्यों आया? क्योंकि अगर थ्रेट, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन ऐसे कुछ फीलिंग्स होते हैं तो मॉडल्स में यूज होता है, या मॉडल्स फिर वो आई के साथ में शैल के बदले विल यूज होता है. और फिर जहाँ विल होता है वहां उल्टा हो जाएगा, शैल यू हो जाएगा. यानी अब इसको जब हम लिखेंगे आई विल बीट यू, तो ये सब्जेक्ट जो ये है, इसका सब्जेक्ट विल बीट, ये वर्ब है, इसका मेन वर्ब है बीट, एंड देन यू इज द ऑब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट बन जाएगा यू. ठीक है, जैसे मैंने कहा ना आई के साथ में ऐसे शैल आता है नॉर्मल फ्यूचरिटी के लिए, लेकिन मॉडल्स में स्पेशल सेंटेंसेस होते हैं जैसे थ्रेट, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, इनमें आई के साथ में विल आ जाता है, फर्स्ट पर्सन के साथ में विल आ जाता है. जहाँ दोनों में आई और वी के साथ में शैल आता है उसके बदले विल आ जाता है. तो बाकी के जो प्रोनाउंस है उनके साथ में जहाँ विल आता है वहां में शैल आ जाएगा, यू शैल. अब यहाँ पे ये बी में चली जाएगी क्योंकि सिंपल फ्यूचर टेंस है. सिंपल फ्यूचर टेंस में इसके साथ में बेस फॉर्म रहेगी, तो ये बीट की बेस फॉर्म यहाँ पे आ गई बी, और ये थर्ड फॉर्म में आ जाएगा यू शैल बी बीटन बाय मी. ठीक है, these are the ways in which the imperative sentences can be transformed from active to passive. ये आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ये सेम टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर गिवन 1 month फॉर योर प्रैक्टिस. आप इनको प्रैक्टिस करें. पहले ये फर्स्ट यू लर्न हाउ टू डू देम ऑन योर ओन. यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. So learners, this was all about today's class. In our next class, we will learn how to transform interrogative sentences from active to passive. Till then, keep practicing. Thank you very much.